بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی۔ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ آج کی سب سے اہم خبر ہے منی بجٹ کے حوالے سے جو آج پیش کر دیا گیا ہے پارلیمان سے منظوری کے بعد۔ اب اس کا نفاذ بھی ہو جائے گا۔ پوسٹ منی بجٹ پریس کانفرنس بھی آپ نے شوکت ترین صاحب کی دیکھ لی۔ اس بجٹ میں عوام کے لیے کیا تحفے ہیں اس پر بات ہوگی، اور پھر اس بجٹ کی مخالفت کرنے والی بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کے اکابرین خود آج کہاں غائب تھے، یہ سوال بھی اٹھائیں گے۔ اور خلاصہ تو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ گو کہ ماچس تک کو اس بجٹ کے بعد آگ لگ جائے گی۔ کیوں ضرورت پیش آتی ہے منی بجٹ پیش کرنے کی کسی بھی سرکار کو؟ آئی ایم ایف کے ہاں ہم کس حد تک پابند ہیں، اور مہنگائی کس حد تک بڑھے گی اس بجٹ کے بعد؟ ان تمام معاملات پر اور تمام اشیاء کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے آج رکھیں گے۔ لیکن سب سے پہلے سر پروگرام میں بات کریں گے، آج چونکہ ہے 30 دسمبر، تو آج ہی کے دن 1906 میں ڈھاکہ میں نواب سلیم سیف اللہ صاحب کے ہاں، سیف اللہ نہیں، ہاں جی نواب سلیم اللہ، ہاں جی نواب سلیم اللہ، ان کے ہاں آپ کے ذہن میں سلیم سیف اللہ گونجے ہیں، ہاں جی ان کے ہاں پاکستان کی خالق جماعت، میری مراد آل انڈیا مسلم لیگ ہے، اس کی بنیاد رکھی گئی۔ جی تو یہ بڑا تاریخی دن ہے، اور آپ موجود ہوں اور اس دن کا ذکر نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ اور نواب سلیم اللہ جو نوابان ڈھاکہ ہیں اور اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے خواجہ ناظم الدین صاحب بھی جی اور خواجہ خیر الدین بھی۔ اور مسلم لیگ کی جب بنیاد رکھی گئی پورے سب کانٹیننٹ سے لوگ وہاں اکٹھے ہوئے، تو قائد اعظم اس اجلاس میں شریک نہیں تھے اور وہ بعد میں شامل ہوئے، لیکن مولانا ظفر علی خان یہاں سے موجود تھے، جی مولانا محمد علی جوہر تھے، محمد علی جوہر تھے، وہ بھی موجود تھے۔ بہرحال مسلمانوں نے اپنی ایک الگ جماعت کی بنیاد رکھی، اور ابتدا میں آپ کانگریس اور مسلم لیگ دونوں کے رکن رہ سکتے تھے بیک وقت، لیکن بعد میں پھر فاصلے پیدا ہوئے، اور یہی مسلم لیگ جو ہے پھر اس نے پاکستان کے قیام کا مطالبہ کیا، اور اسی دسمبر کے مہینے میں 1930 میں 29 دسمبر کو، وہ بھی یوم تاسیس کا جلسہ تھا الہ آباد میں، جس میں علامہ اقبال نے جو خطبہ صدارت پیش اپنا پڑھا، اس میں پھر قیام پاکستان کا مطالبہ پیش کیا گیا، یعنی تقسیم کی تجویز پیش کی گئی کہ مسلمان علاقے جو ہیں اور الگ ہو جائیں، یعنی ایک الگ تشخص کا تحت، الگ تشخص ان کا قائم ہو جائے وفاق ہند کے تحت کے اندر یا اس سے باہر۔ یہ وہی الہ آباد ہے جس کا ہم کل ذکر کر رہے تھے، جسے 435 کا نام بدلا جا رہا ہے، الہ آباد کہا گیا، انگریز نے الہ آباد رکھا، اور پھر آدتیہ یوگی ناتھ نے اس کا نام بدل دیا۔ اس لحاظ سے یہ تاریخ جو ہے بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ لیکن سر سال بھی تو ختم ہو رہا ہے نا آج، اب ایک سال ختم ہو رہا ہے، اب اس لیے بھی کہ 30 دسمبر 1973 کو میری شادی ہوئی تھی۔ واہ، تو یعنی آپ کی میری شادی کو 48 سال برس بیت گئے، 48 برس، گولڈن جوبلی کے قریب قریب ہیں آپ، 2 سال رہ گئے، 2 سال رہ گئے ہیں، اور ماشاءاللہ سر آپ کو مبارک۔ شادی میری ہوئی حیدرآباد میں، امیر جماعت اسلامی حیدرآباد سندھ میاں محمد شوکت صاحب ان کے ہاں، کیونکہ اس وقت بھٹو صاحب کا دور تھا اور قید و بند کی صحبتیں اٹھانی پڑتی تھیں، مقدمے درج ہوتے تھے، سنا ہے شادی کے ہنگام بھی آپ کچھ اسی معاملے میں ضمانتیں طلب ہوتی تھیں، تو ایک بڑا دباؤ تھا، تو اس وقت پھر سوچ سمجھ کر یہ شادی کی کہ ایسے گھرانے میں شادی کرنی ہے جہاں جیل جانا اور باہر آنا معمول کی بات ہو، اور قبول ٹھیک ہے، کسی یعنی ایسا نہیں کرنا کہ بھئی کوئی بڑے تاجر گھرانے میں یا کوئی انڈسٹریلسٹ گھرانہ جو ہے، یا روایتی ہمارا جو ہے گھرانہ۔ کچھ آپ کے پرانے انٹرویوز میں نے دیکھ رکھا ہے، کیا یہ بات درست ہے کہ شادی ہوتی ہی آپ کی غالباً جو ملازمت سے فراغت ہو گئی؟ اچھا، کیونکہ بند ہو گیا تھا افسردہ زندگی، اور حکومت نے بند کیا، تو پھر ادارے نے فیصلہ کیا کہ اب ہم اس کا متبادل شائع نہیں کریں گے۔ تو ابتدا میں تو یہ ہوا کہ بہت، یہ تو شادی جو ہے عجب سبز قدم جو ہے دلہن کے پڑے ہیں، لیکن وہی ایک نئی زندگی جو ہے نا، اس کا ظہور ہوا کہ میں نے اپنے ادارے کی بنیاد رکھی، اور پھر ایک نئی دنیا جو ہے اس کے دروازے کھلتے چلے گئے۔ ماشاءاللہ سر، اللہ تعالیٰ آپ کو حیاتی دے الحمدللہ، اور آپ کی شادی سلامت رہے۔ یہ بھی ایک مشورہ میرا نوجوانوں کو ہے، کیا
मेरा जो शादी का कार्ड था ना, 48 बरस बाद। एक छोटे से एक छोटा वर्क था, अच्छा कार्ड। अच्छा, फिर उसके बाद कई नौजवानों ने जमीयत के उसको फॉलो किया। उनकी शादी के कार्ड जो है एक यक वर्क का कार्ड, अच्छा और सादा अल्फाज में दावत दी गई थी। अच्छा, क्योंकि ये लोग जो तो फूल कार्ड जो बूटे है, हैं, फुलचड़ियाँ, ये नहीं थी कार्ड जो है। और मेरा ख्याल असलम कमाल साहब जो है उन्होंने इसको डिज़ाइन किया था, और बड़ा एक खूबसूरत सा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा था। अब तो लोग का एक कार्ड जो है ना, अब उस पर तो मुझे तो बातों का बॉक्स आते हैं पूरे। जी हाँ, उसमें थोड़ी बहुत स्वीट्स भी होती हैं, उसमें स्वीट होती हैं, कार्ड फिर ऐसे होते हैं, 3-4 कार्ड्स होते हैं, सैकड़ों रुपए वो कार्डों पे लग और जाते वो हैं। पढ़ना पड़ता है बाकायदा कि अच्छा इवेंट कौन से जहाँ मैं मधु हूँ। ये जो है फिर जितना भी आप चाहे खर्च करते चले जाएं, लेकिन शादी करने से पहले जो आप भी नौजवान हैं, आपकी भी हो चुकी माशाल्लाह, जी ये ज़रूर सोच लें कि आपकी ज़िंदगी का ढब कैसा है, और आपको शरीक हयात जो है उसी के मुताबिक तलाश करनी चाहिए। ये मशवरा शामी साहब का 48 बरस कामयाब ज़िंदगी गुजारने के बाद आप सबके नाम। अच्छा सर, अब चूंकि साल ख़त्म हो रहा है, ये मौजू बाद में ले चलता हूँ, बजट के ऊपर बात पहले कर लेते हैं अगर आप इजाज़त दें। वजह ये हुई कि कुछ ही देर पहले साल ख़त्म हो रहा है ना, अब इसके भी बड़े मामलात हैं। इस साल में क्या हुआ, अब आइंदा साल में क्या होगा, इसमें हुआ। लेकिन आज जो हमने देखा है, वो तो जो कौमी असम्बली में जो हंगामा रहा, तो का हंगामे का साल था हमारी सियासी जिंदगी में, और हंगामे पे ख़त्म हो रहा है, और हंगामे पे ख़त्म हो रहा है, मुलतवी हो गया। तो यासिर मलिक साहब से भी हम रब्ता कर रहे हैं, और सीनियर साहब अभी तो दिगा मश्ती हुई। एक हमारी बहन जो थी MNA, वो कह रही थी मेरी उंगली जो है मरोड़, मैं अर्ज करता हूँ सर आप, फ्रैक्चर हो गई है। पार्लियामान में मौजूद थे यासिर मलिक, उन्होंने आंखों से ये वाक़या देखा है, फिर उसे रिपोर्ट भी किया है। शगुफ्ता जुमानी साहिबा हैं, जिनका ताल्लुक मुटियारी सिंध से है, पीपल्स पार्टी की MNA है। इनसे मंसूब है कि इन्होंने जब तल कलामी हो रही थी तो उन्होंने थप्पड़ रसीद किया गजाला सैफी साहिबा को, जो DHA कराची से जिनका ताल्लुक है, PTI की ये रुकने कौमी है। यानी झगड़ा जो है दो खवातीन के यानी सिंध के अंदर ही रहा, सिंध के अंदर, देही सिंध जो है, और वो शहरी सिंध पे हमलावर हो गया। हमलावर हुआ। अफसोस की बात है जब ये मनाजिर ऑन एयर जाते हैं, दुनिया भर से लोग, अब आप तो पता है विजुअल जब खबर जब आती है, पूरी दुनिया के सारिफीन जो बैठे हैं सोशल मीडिया पे, उनको पता चलता है यहाँ क्या हो रहा है। अभी हम कल परसों उर्दन की पार्लियामान के मनाजिर दिखा रहे थे टीवी पर, वो भी बहुत कि देखिए कैसे गुत्थम गुत्था हुआ है। कुछ ना कुछ दिंगा मुश्ती होती है, लेकिन ये इस तरह यानी उंगली मरोड़ दी जाए, थप्पड़ लगा दिया जाए, ये बहुत ज्यादती की बात यासिर ये हुआ क्या था? जैसे वो कहा ना, शेर भी सुनते जाए बहादुर, शेर पहले सुनिए यासिर। जफर आदमी उसको ना जानिएगा, जी हाँ, चाहे हो कितना ही साहिब फहमो सका, जिसे ऐश में याद खुदा ना रही, जिसे तैश में खौफ खुदा ना। वाह वाह वाह, क्या पैगाम है। तो यासिर ये तैश और ऐश के मामलात के बीच थप्पड़ तक नौबत कैसी आई? आपकी आंखों ने क्या देखा वहाँ? बहुत शुक्रिया जामी साहब और शामी साहब। असल में आज जब कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो उससे पहले मुत्तहिदा अपोजिशन का जो इजलास था उसमें ये फैसला कर लिया गया था कि अपोजिशन भरपूर एहतजाज करेगी जब ये मिनी बजट बिल पेश किया जा रहा होगा। जब मिनी बजट बिल पेश करने के लिए एजेंडा जो है वो आज का मुखर किया गया, मुखर होने के बाद जैसे ही बिल पेश किया गया, स्पीकर की जानिब से शौकत तरीन को इजाजत दी गई। उन्होंने बिल पेश करने ही लगे थे तो अपोजिशन ने उनके स्पीकर डाइस का घेराव किया। इसी दौरान वजीर खजाना शौकत तरीन जो है उनके डाइस का घेराव किया, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा था। इसी दौरान हमने देखा कि जो PTI की MNAs हैं वो भी आगे आई और उन्होंने भी आगे आके नारे लगाने शुरू कर दिए अपोजिशन लीडर के खिलाफ, नवाज शरीफ के खिलाफ, और इसके साथ साथ इधर से प्ले कार्ड उठा रखे थे जिसके ऊपर मिनी बजट नामंजूर के नारे दर्ज थे। इसी दौरान देखने में आया कि जो पीपल्स पार्टी की खातून MNA है शगुफ्ता जमानी, उन्होंने PTI की जो रुकन है गजाला सैफी के मुंह पर थप्पड़ मारा, और बाज़ाब्ता तौर पर जो उसमें देखा भी जा सकता है वीडियो में कि उन्होंने यूं फौरन से आगे लपकी और उनके ऊपर जाके हमला करने की कोशिश की। इस दौरान जो चीफ व्हिप है आमिर डोगर, उन्होंने बीच बचाव कराया, साइड पे कर दिया दोनों खवातीन को, लेकिन इस दौरान भी चूंकि आवाज अंदर से उस तरह से नहीं आती बाहर, लेकिन शोर शराबा काफी रहा। स्पीकर डाइस का घेराव किया गया, स्पीकर की जानिब से भी मना किया गया कि तमाम ये बताएं, ये तो वाकया आपने रिपोर्ट कर दिया, ये अपोजिशन की क़यादत बिलावल साहब हूँ, जरदारी साहब हूँ, शहबाज शरीफ साहब हूँ, जो कि चाह रहे थे कि हम ये बजट पास नहीं होने देंगे मिनी बजट, ये खुद कहाँ थे? देखिए, ये आज हमने जब मुत्तहिदा अपोजिशन का इजलास खत्म हुआ
تو हमने मरियम औरंगजेब से ये सवाल भी किया कि इतना अहम इजलास आज का, और आज जब मिनी बजट पेश होने जा रहा है तो अपोजिशन तो एहतजाज करेगी, लेकिन आज शहबाज शरीफ साहब यहाँ पर मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा जी जब वोटिंग होगी तो वोटिंग में शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन के दरमियान में आपको खड़े हुए दिखाई देंगे। और फिर इसी तरह ऐसा तो ना हुआ? मरी जो है, हमने उनसे पूछा, वोटिंग तो नहीं हुई ना, वोटिंग तो नहीं हुई ना, अभी तो मौका हो गया ना। जामी साहब आज बिल जो है वो ले हुआ पेश हो गया, अब इस पे 2 से 3 रोज बहस चलेगी, 2-3 रोज बाद वोटिंग होगी, वोटिंग के बाद बाज़ाब्ता तौर पर बिल जो है वो कौमी असम्बली से मंजूर हो जाएगा, फिर उसके बाद ये सेनेट में चला जाएगा। मगर ये क्योंकि मनी बिल है इसलिए सेनेट की मंजूरी जो है उसमें अहमियत नहीं रखती। जी बिल्कुल शामी साहब, ये कौमी असम्बली से ही पास हो जाएगा, अहमियत का हामिल नहीं है कि अगर सेनेट में जाता है वहां से मंजूर करवाने की जरूरत नहीं है, कौमी असम्बली से ही 2 से 3 रोज में जब बहस कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ से मंजूर हो जाएगा। चलिए एक बात तो तय हो गई ना, आपका आज जो अपोजिशन का हंगामा था उससे एक बात तो वादे हो गई। वो क्या? वो ये कि हुकूमत जो है उसकी सफ़ों में दरार नहीं पड़ी, और इत्तेहादी जो है वो अपना अपना मामला करके अपना अपना उल्लू लेकर उसको कुछ सीधा कर चुके हैं, कुछ सीधे बैक ऑन ट्रैक है। ठीक है ना। आज वज़ीर-ए-आज़म साहब से एक सवाल पूछा गया था, उन्होंने कहा कि मैं बयान भी उनका नशर करता हूँ, उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा हुकूमत को कोई मुश्किल नहीं है। सुनाओ जरा आपको क्या कह रहे थे? ये देखा ना, हाँ जी, कहा शोर शराबा होता ही उस वक्त। अगर आपको पता हो कि ये हुकूमत की सफ़ों में दरारें पड़ गई हैं तो फिर तो आप शोर क्यों मचाएंगे? तो शोर और हंगामा जो है इस बात की दलील है कि अपोजिशन अपोजिशन रहेगी और हुकूमत हुकूमत रहेगी, अक़लियत उनके पास रहेगी, अक्सरियत उनके पास रहेगी। ठीक। अलबत्ता नवाज शरीफ साहब के बारे में भी बोल रहे हैं वो, क्योंकि एक रिपोर्टर ने राहदारियों पे उनसे बरमला पूछने की कोशिश की, देखिए क्या कहते हैं। कहा जा रहा है कि वो वतन वापस आ रहे हैं, तो इस हवाले से आपका मौक़िफ़ क्या है कि नवाज शरीफ वतन आज आ रहा है, कल आ रहा है? ये जब पहले गया था ना सऊदी अरेबिया, तब भी हम सुनते थे अब आ रहा है, कल आ रहा है, जब तक वो समझौता नहीं। खान साहब एक क्वेश्चन, थैंक यू खान साहब। शहबाज शरीफ सर जमानती थे, शहबाज शरीफ जमानती थे सर, फ्रेश इलेक्शन करवाएंगे, शहबाज शरीफ जमानती थे सर। की तकरीर नहीं होती, उसकी जॉब एप्लीकेशन होती है। और फिर ये कहा कि हुकूमत को कोई मुश्किल नहीं है। तो सर जो आज फाइनेंस तरमीमी बिल की कॉपी दुनिया न्यूज़ ने हासिल की, उसके जो इक़्तिसाबात हैं, फिर शहबाज राना साहब ने बड़ी तफसीली आज एक स्टोरी छापी हुई, सीनियर सहाफ़ी हैं, उसका खुलासा कुछ यूँ है कि इम्पोर्टेड फार्मूला दूध, साइकिल, इन पर जो टैक्स छूट दी गई थी वो वापस लेने की तजवीज़ है। और मगर इसमें तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये जानना ज़रूरी है क्योंकि माचिस तक बात आती है। 43 अरब रुपया मेरा ख्याल 360 नहीं, उन्होंने कहा 343 अरब, उन्होंने कहा मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, 144 आइटम्स हैं उसमें जो टैक्सों की छूट वापस ली गई है। मगर उनका कहना यह है कि आम आदमी जो है उस पर सिर्फ 2 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। ये उनकी कैलकुलेशन है। शौकत तरीन साहब का एक मसला ये है कि जो भी ब्रांडेड दूध हैं या योगर्ट है, चीज़ है, देसी घी है, उस पर भी टैक्स लगेगा। अब अद्वियात की मैन्युफैक्चरिंग में तो आप जैसे जो इस्तेमाल होता है, मुतमव्वल लोग हैं ना, अर्ज करता हूँ, ब्रांडेड दूध तो वो पीते हैं ना। ब्रांड देखिए, हर वो दूध शामी साहब पंजाबी भैंस को जो है दूध पीते हैं, उसका सुन तो लीजिए, हर वो दूध जो पैक्ड होगा, जिसके ऊपर कोई नाम लिखा है, वो ब्रांडेड होगा। अच्छा, आप गवर्नमेंट ऑन दी पैरेलल ये तशहीरी मुहिम चलाती है कि खुला दूध मुज़रे सेहत है, लिहाजा आप डब्बा पैक दूध पीजिए। तो अब ये अब डब्बा पैक दूध जो भी होगा वो तो महंगा हो जाएगा। उनका जो मुस्लिम लीग खाफ है, हमारे जो अमून सलाई साहब के भाई रासिक इलाही, उनका भी दूध का कारोबार है, कई और लोगों का भी, और हमजा का भी दूध का कारोबार है। तो फायदा होगा उन्हें? और तो नहीं, फायदा नहीं, नुकसान होगा ना। कैसे? उन टैक्स जो लग गया उसके ऊपर। सर वो अपनी कीमत बढ़ाएंगे? नहीं, वो महंगा हो जाएगा ना। जब महंगी होती है चीज़ तो फिर उसकी बिक्री कम हो जाती है ना। सर तो मुस्लिम लीग खाफ को इस पर एहतजाज करना चाहिए। अच्छा, वो कर चुके जो एहतजाज करना था। शहबाज राना साहब, बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त का। सर ये यहाँ से शुरू करते हैं कि खुलासा मेरा ये है कि माचिस तक महंगी होगी। जो जिन आइटम्स को आपने गिना एक रोज़ पहले,
उस हिसाब से जो आज मिनी बजट पेश हुआ या प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें कितना फ़र्क आया, कौन कौन सी चीज़ों की कीमतें महंगी होंगी, आसान लफ्ज़ों में नाज़रीन को बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप दोनों को एक तो मेरा सलाम, आप दोनों सीनियर हैं दोनों। हमारा सलाम भी पहुंचे जनाब आपको। नहीं आप मुझसे सीनियर हैं सर। शामी साहब, आपको हम सुनते हैं, आपको पढ़ते हैं और आपसे सीखते हैं। सर आप लोगों के शागिर्द हैं सर, बस दुआ करते रहिएगा। बिस्मिल्लाह कीजिए। अब सर इसमें आज जो अभी शामी साहब भी फरमा रहे थे 343 अरब रुपए का जो शौकत तरीन साहब ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वो सिर्फ जो सेल्स टैक्स की जो छूट है वो वापस ली गई है। इसके अलावा कोई 5.5-6 अरब रुपए का इम्पैक्ट उस चीज का है कि जो विदहोल्डिंग टैक्स है टेलीफोन कॉल्स के ऊपर वो भी 10 से 15% हो गया है। फिर कुछ अशिया के ऊपर जो है वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी लगाई गई है। तो मुजमई तौर पर जो इसका सालाना इम्पैक्ट आएगा वो तकरीबन वही 360 अरब के आसपास होगा। एक तो ये क्लैरिफिकेशन। दूसरा, तकरीबन हर इम्पोर्टेंट जो चीज है वो हिट होगी। ये जो मिनी बजट आज इंट्रोड्यूस हुआ है, इसमें अगर मैं इसको सादा अल्फाज में बयान कर सकूं, जो एक हाउस वाइफ है वो जब किचन में काम करेगी तो वो माचिस की तीली से लेके वेजिटेबल घी, नमक, मिर्च, इस तरह की जो अशिया है इन सब के ऊपर इन्होंने सेल्स टैक्स लगाया है। इसके अलावा अगर आप शॉपिंग पे जा रहे हैं, तो अगर आप रेस्टोरेंट्स पे जा रहे हैं तो रेस्टोरेंट्स के ऊपर फॉर एग्जांपल जो इस्लामाबाद है वहाँ पे जो हमारा रेट है 7.5% है GST का, पंजाब में गालबन ये 15% है। तो ये वो तो सर्विसेज के ऊपर है। जो गुड्स के ऊपर रेट है वो अब तमाम का इन्होंने कर दिया है 17%। यानी एक बात मैं वाज़ेह कर दूं सर, यानी कि रेस्टोरेंट्स में, फूड चेन्स में या बेकरी में जो ब्रेड बनेगी उस पर भी 17% होगा। जी उसके ऊपर भी 17% होगा। इवन कि अगर आप किसी होटल से, रेस्टोरेंट से नान लेते हैं उसके ऊपर भी 17% है। लेकिन अगर आप तंदूर से नान लेने जाते हैं उसके ऊपर 17% नहीं होगा। नहीं है। अच्छा, इसी तरह तो इसका मतलब है कि शहरी अगर कोई चिकन कढ़ाई या कुछ और खाने किसी रेस्टोरेंट में जाए तो वो आम तंदूरची से 2 नान हमरा ले जाए, जो कि वो इजाजत भी नहीं देंगे बैठने की। वो इसलिए भी जरूरी है कि जब आप कंप्लेन करते हैं जी कि नान 35 रुपए का लगाया है, तो डिप्टी कमिश्नर जो आगे से होते हैं इस्लामाबाद के, वो कहते हैं आप वहाँ पे गए क्यों थे, आप किसी और जगह से ले लेते। ठीक। तो ये और ज्यादा जरूरी हो गया है। इसके अलावा जो कैपिटल मशीनरी हर तरह की, अगर आपको इंडस्ट्रियलिस्ट है, अपनी वो बिजनेस एक्सपेंशन करना चाह रहा है, तो उसके ऊपर 17% GST उसको मशीनरी के ऊपर देना है। मोर इम्पोर्टेंटली जो दवाइयाँ हैं, दवाइयों का जो रॉ मटेरियल है, चाहे वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड है या इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल है, सबके ऊपर 17% GST इन्होंने प्रपोज किया है। बाकी क्योंकि इससे 45 अरब कमाना है। जो इन्होंने 45 अरब तो एक है, इन्होंने जो टोटल इम्पैक्ट उसका आज बताया है शौकत तरीन साहब ने, जो 343 अरब का हिस्सा है वो इन्होंने कहा है कि 160 अरब रुपया है फार्मास्यूटिकल सेक्टर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। मैं शहबाज साहब शामी साहब की खदमत में भी खबर अर्ज कर देता हूँ, बड़ी कंसर्न होंगे उससे शामी साहब और दीगर भी, कि जो इम्पोर्ट ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़ प्रिंट्स, जर्नल्स और पीरियडिकल्स है उस पर भी जो सूरत हाल बनेगी वो भी सुना दें। जी बिल्कुल सर, जो इम्पोर्ट ऑफ न्यूज़पेपर्स हैं, पीरियडिकल्स हैं, जर्नल्स हैं, इसके ऊपर भी 17% GST है। इसमें सिर्फ डिक्शनरीज जो है वो इन्होंने एग्जेम्प्ट किए हैं, बाकी हर तरह का जो इम्पोर्टेंट मटेरियल आ रहा है उसके ऊपर भी 17% है। नहीं, न्यूज प्रिंट पर भी है। जी न्यूज़ प्रिंट पर भी है। नहीं इम्पोर्ट, न्यूज प्रिंट तो बनता नहीं ना पाकिस्तान जी, वो तो इम्पोर्ट होता है। इम्पोर्ट होता है, उस पर है ना सर। अच्छा, पेपर के ऊपर मैं जामी साहब नहीं, पेपर पे नहीं है मेरा ख्याल, शायद पेपर पे नहीं है, पेपर पे नहीं है, प्रिंटेड मटेरियल पर है। प्रिंटेड फॉर एग्जांपल अगर मैं फाइनेंशियल टाइम्स मंगाता हूँ, मेरा ख्याल है उसके ऊपर लगेगा 17% GST। अच्छा, दूसरा इसके अंदर इस तरह बहुत सारी ऐसी अशिया है जो एक थोड़ी सी प्रिंसिपल की बात है ना, कि एक जो चीज हम पे एक पाकिस्तानियों को बेची जाती है कि जी आप लग्जरी अशिया के ऊपर हमने टैक्स लगाया इंपोर्टेड चीजों के ऊपर। एक बात सर ध्यान में रहे कि पाकिस्तान अब तकरीबन हर चीज में ही डेफिशिएंट है। हमारा हर चीज में खसारा है, चाहे हम गंदम बाहर से आ रही है, हमारी चीनी बाहर से आ रही है, या बीज, आपका बीज बाहर से आ रहा है, कॉटन बाहर से आ रही है। बिल्कुल, कॉटन और कॉटन सीड के ऊपर भी 17% GST लगेगा, रॉ कॉटन के ऊपर भी, और जो कॉटन का बीज है उसके ऊपर भी 17% GST है। फिर बच्चों का जो दूध है, इन्फेंट मिल्क फार्मूला जो है, उसके ऊपर भी GST है, चाहे वो डोमेस्टिक है या इम्पोर्टेड है। तो एक तो ये जो डिस्टिंक्शन है ना जी इम्पोर्टेड और लोकल की या अमीर और गरीब के इस्तेमाल की, मेरा ख्याल हमें अब ये खत्म कर देनी चाहिए। जिस तरह हमारी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है और जिस तरह की हमारी दरामदात हैं, आपकी 80% से ज्यादा जो दरामदात है पाकिस्तान की
वो आपकी एसेंशियल अब हो गई हैं, जिसमें अगर कोई किसी की फैक्ट्री भी है तो फैक्ट्री का रॉ मटेरियल भी बाहर से आता है। आपने बहुत सारे जूतों की दुकान पे जाते हैं, वो उस पर जो ठप्पा लगा होता है वो लोकल ब्रांड का होता है, लेकिन वो चीज बेसिकली चाइना से बन के आ रही होती है। मगर शहबाज साहब ये बताएं, ये तफसील तो हो गई, आप की भी बड़ी नज़र है मुल्क की मईशत के ऊपर भी, और आप ये बताइए कि कोई चारा था हुकूमत के पास इसके अलावा? सर बात ये होती है कि आपने मुश्किल फैसला कौन से वाला करना है, ये आपकी चॉइस होती है। इस वक्त भी फ्रैंकली स्पीकिंग जब इतने हमारे बुरे हालात थे, सितंबर में भी एक जो बजट आया उसके अंदर भी कुछ इन्होंने रिलीफ दिया। इवन के इस जो बजट आज इन्होंने अनवेल किया है उसके अंदर भी जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है रीट्स, उसके ऊपर भी कुछ इन्होंने कंसेशन दी हैं। ये हमेशा हुकूमत वक्त की एक चॉइस होती है। हुकूमत ने जो रास्ता लिया है वो वाला रास्ता लिया है जहाँ पे जीएसटी की जो एग्जम्पशंस थी, छूट थी टैक्सों की, वो वापस लिया है। अगर इसकी बजाय हुकूमत जो सेल उसकी इनकम टैक्स की छूट दी हुई है, मैं रेट्स बढ़ाने की बात नहीं कर रहा सैलरीड क्लास की, वो एक अलग चीज है। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिपेंडेंट पावर प्लांट जो पाकिस्तान में लगे हुए हैं 1994 से लेकर 2015 तक, इसमें चीन के भी शामिल है, उनकी आमदन के ऊपर छूट है। हम ये छूट क्यों दे रहे हैं? नहीं मगर वो तो उनसे मुआहदे हैं ना। तो सर आपकी बात ठीक है, यहाँ पे भी आपने कुछ कमिटमेंट की हुई है। मोबाइल फोन है मिसाल के तौर पर, चलो एक मुआहदे की आपने बात की, मैं आपको एक और मिसाल दे देता हूँ। मोबाइल फोन है, अभी आपने एक पॉलिसी लेके आए थे कि मोबाइल फोन की प्रोडक्शन को आपने इनकरेज करना है। उसके ऊपर जो जीएसटी था आपने फिक्स कर दिया था 1740 रुपए फी सेट से लेके जो $200 के करीब सेट होगा, 9200 को 70 रुपए या कितने था फी सेट जो आईफोन जो है उसके ऊपर, उन तमाम के ऊपर हमने 17% जीएसटी आज प्रपोज किया है हुकूमत ने। तो आपकी पॉलिसी के अंदर तसलसल नहीं है। यहाँ पे क्या मुआवजा नहीं था क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में डोमेस्टिक असेंबलिंग या उसकी मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल की शुरू हो गई। ये सारी बात होती है सर नीयत की और लॉबीज की। जहाँ पे लॉबी मजबूत है वहाँ पे हाथ नहीं डाला जाता। ठीक। एक सर नुक्ता बड़ा अहम है जो कह रहे हैं ना कि महंगाई कैसे आम आदमी को मुतासर करेगी, वो ये है कि जो शहबाज साहब करेक्ट मी, पोल्ट्री फीड होगी या कैटल फीड होगी या सोयाबीन फीड होगी, उसमें भी 10 से 17% उसमें इजाफा हो जाएगा जीएसटी में। तो जब पोल्ट्री फीड महंगी होगी, चिकन महंगा होगा, चिकन से बनने वाली हर प्रोडक्ट महंगी होगी। इज इट ट्रू? ये बात बिल्कुल ठीक है, बल्कि इसमें एक और चीज ऐड कर लें, जो अनकुक्ड पोल्ट्री मीट है, जैसे चिकन हम जाके दुकान से लेते हैं, उसके ऊपर भी 17% जीएसटी है। तो ये कैटल फीड, पोल्ट्री फीड, पोल्ट्री इटसेल्फ, इसके ऊपर जो है वो 17% जीएसटी लग गया, प्रपोज कर दिया इन्होंने। जब पार्लियामेंट अप्रूव करेंगे तो वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये आप जब हुकूमत जाएगी ना इसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर, एक और सर आपको आर्ग्यूमेंट सुनने को मिलेगा आइंदा आने वाले दिनों में कि इससे महंगाई, इसमें बहुत सारी ऐसी अशिया के ऊपर टैक्स लगा हुआ है जो आपकी महंगाई का एक नंबर आता है हर महीने, वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, कि उसके बास्केट में वो चीजें शामिल नहीं है। जो चीज सीपीआई बास्केट में शामिल नहीं है और उसका रेट ऊपर नीचे हो रहा है, तो इसका मतलब है कि लोग उससे भी मुतासर हो रहे हैं। तो हमें इस आर्गुमेंट को भी नलीफाई करना पड़ेगा कि लोगों के इस्तेमाल की चीज है वो इफेक्ट हो रही है, चाहे वो सीपीआई बास्केट में उसका रेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शहबाज राना साहब। एक भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी सियासी हुकूमत को। बिल्कुल। तो जब आप सियासी कीमत अदा करते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुशी से काम नहीं कर रहे होते, मजबूरी है। उंगली जो टूटी है, कड़वा घूंट है, कड़वा घूंट है, उंगली फ्रैक्चर तो हुई है ना। लेकिन सोचना ये पड़ेगा ना, अगला मुद्दा जो हुकूमत का हाथ भी तो मरोड़ा है ना, किसी ने मरोड़ा होगा। लेकिन अर्ज़ ये है कि अब सोचने का मुकाम ये है कि इस नहज तक बात कैसे आती है। वो तो फिर देखे ना, ये हम वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। तो वो खान साहब फिर ठीक कहते हैं कि पिछले एतवार के तोहफे जो मुझे मिले, उनका दौर जो है उसका भी हिस्सा है। चले हफीज़ पाशा साहब को ज़हमत देते हैं, नज़र रखते हैं इन मामलात पर, लेकिन एक ब्रेक पहले ले लेते हैं। ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। शौकत तरीन साहब ने कहा कि IMF कहता है सब पर सेल्स टैक्स लगाया जाए, लेकिन आम आदमी पर सिर्फ 2 अरब के टैक्स लगे हैं। मालियाती ज़िमनी बिल से महंगाई बढ़ने की अफवाहें गलत हैं। शामी साहब वो सवाल बीच में रह गया कि ये ज़रूरत क्यों पेश आती है? क्या इससे पहले जो हमने बजट पेश किया था वो मुनासिब नहीं था, जो हमें एक ज़िमनी मालियाती बिल भाई आपको टैक्स में इजाफा करना है, रेवेन्यू में इजाफा करना है, जो टारगेट आपको दिया गया है कि इतना टैक्स आपको वसूल करना चाहिए। वो तो कहते हैं हम हदफ से ऑलरेडी आगे जा रहे हैं। नहीं, वो इसलिए आप हदफ से आगे नहीं जा रहे, आप जा रहे होते तो इसकी ज़रूरत ना होती। तो
اس لیے آپ وگرنہ وہ پروگرام سسپینڈ ہو جائے گا. آپ کو پہلے بھی کئی بار ایسا ہو چکا ہے کہ ہم نے بڑے قدر و فر کے ساتھ IMF کے ساتھ معاملہ کیا اور 2-3 قسطیں وصول کیں اور پھر اس کے بعد ان کی شرائط مانی نہیں جا سکیں اور وہ پروگرام بیچ میں سے ٹوٹ گیا. لیکن اب بھی کئی ماہرین جو ہیں وہ اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ اس پہ 3 حرف بھیج دیے جائیں. IMF کا پروگرام بھاڑ میں جاتا ہے تو جائے. وہ ڈاکٹر اشفاق حسین جو ہے نا وہ اس کے بہت بڑے مبلغ ہیں اس بات کے کہ IMF کو آپ طلاق دے دیں اور اس کے بغیر اپنے معاملات جو ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں. مگر جو دوسرے اکانومسٹ ہیں وہ اس سے اتفاق نہیں کرتے. یوں کہنا چاہیے بھاری اکثریت یہ کہتی ہے کہ IMF کا جو پروگرام ہے اس میں سے آپ نہ نکلیں اور اس کو کنٹینیو کریں اور اس کے بعد ایسے اقدامات کریں کہ پھر آپ کو جانا نہ پڑے. جب آپ کے پاس آپ کی برآمدات کم ہوں گی، درآمدات زیادہ ہوں گی، ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی ہوگی، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، ڈالر کی مانگ آپ کو ہوگی. آج انہوں نے جب اس سے پہلے اجلاس ہوا تھا وہاں لوگوں نے سوال اٹھائے شوکت ترین صاحب کے لیے. انہوں نے کہا 165-70 پہ ہونا چاہیے ڈالر. مصنوعی اس میں جب ڈالر کی مانگ زیادہ ہے، سپلائی کم ہے، تو اس کے اثرات مرتب ہوں گے. پھر آپ کو ابھی تو آپ نے کوئی میرا خیال 25 ارب ڈالر کے لگ بھگ تو آپ نے قرض واپس کرنا ہے، کر دو اس سال میں. تو پھر آپ کے پاس چوائس نہیں رہتی. درست. اب موجودہ حکومت نے کیا ایسی پالیسیز اختیار کی جس کے نتیجے میں وہ ہمیں مشکلات میں اضافہ ہو گیا، اس کے بارے میں کہتے ہیں. پہلی تو بڑی بات یہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے بہت بھاری ڈی ویلیویشن کر دی یک طرفہ طور پر، ٹھیک، IMF کے پاس جائے بغیر آپ نے ڈی ویلیو کر دیا روپے کو. پھر IMF کے پاس جانے میں تاخیر کی جو اسد عمر صاحب اور کے دور میں بھی اس سے جب آپ کا روپیہ جو ہے وہ پھر قابو سے باہر روپیہ آپ کا وہ خود کی قدر کم ہو گئی، آپ کے قرض بھی بڑھ گئے، آپ مہنگائی بھی زیادہ ہو گئی. کیونکہ آپ یہ کہتے ہیں، ہمارے فواز صاحب کہتے ہیں نا بار بار یہ امپورٹڈ مہنگائی ہے، امپورٹڈ انفلیشن ہے. درست بات ہے. آپ ایک زمانہ ایسا گزرا ہے نا، 3 سال گزرے ہیں جہاں آپ نے چینی باہر سے منگوائی ہے، جی گندم منگوائی ہے، وہ اشیاء جس میں ہم خود اب آپ دیکھیے اس کے باوجود کہ ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہم ریکارڈ پیداوار کر رہے ہیں ان تمام اجناس کی. نہیں، مگر آپ کی ضرورت کے مطابق نہیں ہوتی نا. آبادی بے ہنگم ہو چکی. آپ کو جب یہ ساری پیداوار آپ کی ضرورت سے کم ہوئی، پھر آپ نے ڈالر میں چیزیں خریدیں. ڈالر جو تھا وہ مہنگا ہو چکا تھا اور مہنگائی بڑھتی چلی گئی. صحیح ہے. تو اس کی تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ تو آپ کے سامنے کے حقائق ہیں. ایک اور اہم خبر ہے جس پر بات رہ گئی تھی ادھوری، جو آج میں کرنا چاہ رہا ہوں سر، وہ یہ کہ آپ نے پرسوں ذکر بھی کیا تھا کہ PTI کا جو منشور ہے اس کو شاید سسپینڈ کر دیا گیا ہے. تو عمر جٹ صاحب نے دستور، منشور نہیں، دستور بڑے سمجھ لینا، دستور اور منشور میں فرق ہوتا ہے. بالکل. دستور ہے کانسٹیٹیوشن، بالکل. منشور وہ آپ کا پروگرام ہوتا ہے، مینیفیسٹو، جس کو آپ آگے اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، بروئے کار لاتے ہیں. بالکل. تو سر اب یہ ہے کہ 2019 کا جو آئین ہے PTI کا وہ کالعدم قرار دیا گیا ہے، اور جو 2015 کا آئین ہے اس کو بحال کیا گیا ہے. جو وزیراعظم کی زیر صدارت PTI کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس میں یہ باتیں طے ہوئی ہیں. 40 رکنی کور کمیٹی آئین جو ہے اس کو سبورٹ کر دیا، ایبروگیٹ کر دیا. کیوں عمر، یہ کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ آئین کو ایبروگیٹ کر، آئین کی کوئی تقدیس نہیں ہے ہمارے ملک میں. آئین کی تقدیس ہے ہی نہیں. اب یہ کوئی بات ہے کہ آپ کی پارٹی کی ورکنگ کمیٹی آئین کے اوپر چلنے کی بجائے آئین کو بدل دے؟ عجیب بات ہے. کیوں جی عمر، یہ کیا ہوا ہے؟ جی بالکل، جس طرح شامی صاحب کہہ رہے ہیں، یہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا آج اجلاس چیئرمین PTI عمران خان نے بلایا ہوا تھا، اور اس میں جو پارٹی آئین ہے اس کے حوالے سے مشاورت کی گئی، اور جو
ان کا 2019 کا آئین تھا جو اس پر یہ تمام پارٹی کی تنظیم سازی ان کی ہوئی تھی، اور جب سے یہ تمام تنظیمیں انہوں نے ریزالو کی ہیں اس کے بعد یہ آج سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ملی اور انہوں نے جو 2015 کا آئین تھا ان کا اس کو امپلیمنٹ کر دیا، اور جو 2019 کا آئین تھا اسے کالعدم قرار دے دیا گیا۔ اب اس کے ساتھ ایک کمیٹی بنائی گئی ہے آئینی اصلاحات کے لیے، جو 2015 کے آئین میں جو کمی رہ گئی تھی یا جس میں جو کچھ چیزیں ایڈ کرنی ہوں گی وہ یہ کمیٹی دیکھے گی، اور کچھ دنوں میں وہ وزیر اعظم عمران خان کو جو نیا ڈرافٹ ہے 2015 کا امینڈمنٹ وہ پیش کرے گی۔ اب جو 2015 کا آئین تھا اس کے مطابق ان کی جو کور کمیٹی ہے وہ 40 رکنی تھی، اب دوبارہ سے 40 رکنی کمیٹی کا انتخاب کیا جائے گا، اور ساتھ ہی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جو بنائی جانی ہے وہ 24 رکنی کمیٹی ہے جس کو بنایا جائے گا، اور اس کی بھی وزیر اعظم عمران خان منظوری دیں گے۔ اب 2015 کا آئین ہے اس میں پارٹی عہدوں کی مدت 2 سال رکھی گئی تھی، کیونکہ 2019 میں اسے بڑھایا گیا تھا، لیکن 2015 کا دستور ہے ان کا اس میں یہ 2 سال مدت تھی وہ بڑھائی گئی ہے۔ اب یہ ایک الیکشن جو ہے قومی سطح پر الیکشن کمیشن بھی 2015 کے تحت قائم کریں گے، تو اب یہ اسد عمر جن کو اس سارے معاملے کا ہیڈ بنایا گیا، جنرل سیکرٹری کے فرائض دیے گئے ہیں، وہ سارے کام کر رہے ہیں، اور وہی آج اس میٹنگ میں بھی موجود تھے اور انہوں نے اس سارے معاملے پر بریفنگ بھی دی۔ بہت شکریہ عمر جٹ صاحر۔ یعنی یہ جو پارٹی کی تنظیم ہے نا، پارٹی کے عہدیدار بھائی پہلے جو وزیر ہیں اسد عمر کے پاس تھوڑا کام ہے پہلے، جو پارٹی کی ذمہ داری بھی دے رہے ہیں، یعنی آپ بتائیے این سی او سی کیا ہے؟ این سی او سی ہے، وہ اس کی ذمہ داری ان کے پاس ہے، پلاننگ ان کے پاس ہے، اب یہ سیکرٹری جنرل بھی اب وہ سیکرٹری جنرل بھی ہو جائیں۔ بھائی کوئی سیکرٹری جنرل آپ ایسے صاحب کو لگائیں جن کے پاس حکومتی ذمہ داریاں نہ ہوں۔ وہی صاحب شفقت محمود صاحب کا وہ تعلیم کا محکمہ دیکھیں گے، تعلیم کا محکمہ دیکھیں گے کہ پنجاب صوبہ چلائیں گے، وہ ہمارے جناب اعجاز چودھری صاحب سینیٹر وہ منہ بسور کے بیٹھے ہوئے ہیں، ناراض ہیں، جو لوگ جن کی چھٹی ہو گئی گھر بیٹھے بیٹھائے۔ اس طرح سے خسرو بختیار صاحب وزارت نبھائیں گے یا جنوبی پنجاب پی ٹی آئی؟ بات یہ ہے کہ یہ جو کسی نے وہ لکھا تھا نا کہ سرکاری افسر نے کہ طالبان کی طرح پی ٹی آئی بھی آن جاب ٹریننگ لے رہی ہے، سٹیئرنگ پہ بیٹھ کے سیکھ رہی ہے، تو اس کے خلاف کارروائی کو حکم جاری کر دیا۔ یہ ایک میرا ایک سوال آپ سے، بڑا سادہ سا سوال ہے، یہ جو 3 برس بعد آپ نے پارٹی کا آئین کالعدم قرار دے دیا اور 2015 کے آئین کو بحال کر دیا اور نئی سی ای سی بنائیں گے، کیا اتھارٹی آپ کے پاس؟ نہیں، میرا سوال یہ ہے کہ یہ 3 برس بعد ڈیورنگ گورنمنٹ آپ کی پارٹی ان گورنمنٹ ہے، تو اگر آپ کی تنظیم آپ کی پارٹی یہ فیصلہ کرتی ہے اس سے کیا مراد لی جائے گی؟ اس سے کوئی مراد نہیں لی جائے گی، بس وہ کیا مراد راس کیا نام ہے؟ نہیں، وہ تو مراد راس ہے نا، دوسرے وہاں جو ہیں کہاں مراد سعید، مراد سعید، بس کو ان کو مراد لے لے، اچھا یا ان کو مراد لے لے، اچھا مراد پوری ہو جائے آپ کی۔ وہ دونوں مرادیں ایک راس ہے اور ایک سعید ہے، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ بات یہ ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی ہے، ابھی تو دیکھیں الیکشن سے پہلے خان صاحب نے اس کے الیکشن شروع کرا دیے تھے، اس پہ پارٹی میں ٹوٹ پھوٹ ہو گئی، اور اب تو پارٹی جو ہے وہ یعنی اس کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہوگی، لوگ بددل ہو جائیں گے۔ اب یہ تنظیم سازی ہو رہی ہے، ایک تنظیم سازی وہ ہمارے طلال چودھری صاحب کرتے تھے، ایک تنظیم سازی یہ ہو رہی ہے، یہ تو باقاعدہ تنظیم سازی۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اب یہ ہے ایک خبر یہ تھی، ایک میں بتاؤں آپ کو، ایرانی زوما جو آئے ہیں آج بکھر کے نوجوان صحافی تھے محمد تنویر قادی، اچھا ایک روزنامہ نکالتے تھے سوال نامہ، اچھا ابھی مجھے تصویر بھی بھیجی کسی نے ان کی، مجھے وہ سوال نامہ کا پرچہ پیش کر رہے ہیں، وہ بیچارے ایک ایکسیڈنٹ میں حادثے میں جاں بحق ہو گئے، انا للہ، بڑا ہی افسوس ہوا مجھے، اللہ تعالیٰ بہت جواز درجات بلند۔ اور پھر ڈاکٹر فرید صاحب نے یہ ملک صاحب نے یہ بھیجا، بھائی خواجہ خیر الدین کے بیٹے ڈاکٹر خواجہ القمہ وہ جناب اس کے وائس چانسلر ہیں منہاج یونیورسٹی کے، تو ان سے بھی کسی دن بات کریں گے، جو ڈھاکہ کے جو خواجگان کا ذکر آیا اور نوابان ڈھاکہ کا ذکر آیا، لیگیسی ہے بالکل ہے، اور یہ ہمارے دوست ہیں کاشف حسین صدیقی صاحب، خلیق طاہر صاحب، زین بھٹی صاحب، ڈاکٹر یاد فرما رہے ہیں، شادی مبارک، اچھا ہاں جی اینیورسری، چلیے اینیورسری، چلیں آپ تہنیتی پیغامات پہنچ رہے ہیں۔ اچھا سر، یہ جو منصورہ آپ گئے تھے ایرانی زوما کچھ آئے ہوئے ہیں؟ ایران آیت اللہ ڈاکٹر حمید شہر یاری، اچھا یہ ایران سے آئے ہیں، عالمی ادارہ تقریب مذاہب اسلامی، یہ ادارہ ہے جو یعنی ایک اخوت کے جذبے کو فروغ دینے کے لیے کام کرتا ہے اور رابطہ مختلف ملکوں کے ساتھ، تو ان کو ملی یکجہتی کونسل کی طرف سے ریسیپشن دیا گیا منصورہ میں، تو لیاقت بلوچ اس کے سیکرٹری جنرل ہیں،
सराजुल हक साहब जमात इस्लामी के अमीर है, वो भी मौजूद थे, और तमाम मसालिक के उलमा, शिया, सुन्नी, अहले हदीस, बरेल, जो भी तमाम मकातिब में इसीलिए बड़ी अहम पेशरफ्त है, बड़े बड़े उलमा, बैठे अगर तो मदारस के लोग मौजूद थे, और एक मौलवी नज़ीर साहब थे, वो अहले सुन्नत के वहाँ से ताल्लुक़ है उनका, ईरान के बड़े जय्यद मौलवी हैं वो भी। उन्होंने कहा, उर्दू में तकरीर की। उर्दू में? हाँ, अच्छा। उन्होंने कहा उर्दू, उन्होंने कहा भाई मैंने, लियाकत साहब बलोच ने कहा आप उर्दू में तकरीर करें। उन्होंने कहा भाई मैंने सोचा कि जब लोग यहाँ से जाते हैं पाकिस्तान से तो वो फारसी में तकरीर करते हैं, और जिस तरह की वो फारसी बोलते हैं उसका इंतकाम यही मैं ले सकता हूँ कि मैं उर्दू में तकरीर, मैं उसी तरह की उर्दू बोलूँ। अच्छा, फिर और उर्दू का पोस्टमार्टम करूँ। उन्होंने किया या बेहतर फिर उर्दू नहीं, अच्छा गुजारा किया, अच्छी उर्दू बोली, लेकिन फिर, और ये जो आयतुल्लाह डॉक्टर हमीद शहरयारी, हमारे सराजुल हक साहब ने कहा मुश्तरका मंडी होनी चाहिए आलम इस्लाम की, इनका आपस में तजारत होनी चाहिए, राब्ता होना चाहिए। पाक ईरान क्रॉसिंग है तो सही बलूचिस्तान में, हाँ, और ये सभी तजावीज़, लेकिन उसके मामलात कुछ और हैं, और हमारे मौजूद है। हमारे जो सलमान गनी साहब ने उनसे सवाल पूछा मसला कश्मीर और फ़लस्तीन के बारे में, उनका हम सब इसमें यकसू हैं। उन्होंने ये भी बात कही, सराजुल हक ने कहा कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान भी हम चाहते हैं कि ताल्लुकात बेहतर हों। इस पे उनका क्या था? और उन्होंने कहा हमारे राब्ते हैं, अच्छा, और आला सतह पर बातचीत जारी है, और हम भी चाहते हैं कि ये मामलात दुरुस्त हों। और तुर्की, सऊदी अरब और ईरान, तो उन्होंने कहा ये मिलकर बहुत काम कर सकते हैं। उनका जोर इस बात पे था, उन्होंने कहा ये जब बैठा हूँ ना जहाँ मैं, मुझे ऐसे लग रहा है मैं जन्नत में बैठा हुआ हूँ। ये जो जिस तरह ये शामियाना है फूलदार, जिस तरह यहाँ मशरूबात पेश किए जा रहे हैं, और जन्नत का नक्शा नज़र आ रहा है। अच्छा। और ये तमाम मसालिक के लोग जहाँ बैठे हैं और एक दूसरे के साथ मुस्करा के बात कर रहे हैं, तो उनका कहना ये था कि इख्तलाफ राय जो है उसको बर्दाश्त किया जाए, यही तो सुन्नी और शिया एक दूसरे के साथ बैठें जिस तरह यहाँ बैठे हुए हैं, और यही हमारा पैगाम है। अगर ऐसा हो जाए, ये रवादारी आ जाए, उन्होंने कहा कि तो मसले हमारे खत्म हो जाते हैं। शामी साहब, इसलिए ऐसे कितने जोम हैं जो इन चीज़ों पे गौर फरमाते हैं? नहीं, यहाँ पे तो जो पॉपुलर लीडरशिप है जोमा की, वो यूट्यूब पे जो गुफ्तगू फरमाते हैं, अल्लाह की पनाह। कहाँ? यूट्यूब पे। कौन से जोमा? हमारे जो मजहबी मुफक्करीन हैं, सो कार्ड और बड़े बड़े आलम जोमा तो नहीं है ना, तो क्या कहूँ, तो फिरका पसंद है बस। तो फिरका पसंदों के साथ तो वही सलूक होना चाहिए चले अब ब्रेक, जो दहशतगर्दों के साथ होता है। एक ब्रेक आ गई। ये दहशतगर्द है। सर, नए साल की ख्वाहिशात के साथ कि अल्लाह ताला आने वाला साल पाकिस्तान के लिए, हम सब के लिए बेहतर साल साबित करे, आसानियाँ हों आप सब के लिए। एडवांस में हम आपको मुबारकबाद दे रहे हैं नए साल की। नया साल मुबारक, नेक दुआओं के साथ। परसों से शुरू होगा जी। तो अभी एक ब्रेक। नाज़रीन, के साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म होता है। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।